A very good morning, class 10 students. I am continuing with the chapter manufacturing industries, and after the agro-based industries or the discussion of agro-based industries, today I will be discussing mineral-based industries. Mineral-based industries, that depends on the minerals like iron and steel, copper, aluminium, nickel. So out of these, the most important industry for anybody or India is the iron and steel industry. ठीक है, iron and steel industry is a very big industry because most of the India's work or Indian things are dependent on these industries. So let me tell you something about iron and steel industry before telling you. Iron and steel industry is one of the basic industry of India. क्योंकि कोई भी सेक्टर हो उसमें आयरन और स्टील की ज़रूरत बहुत पड़ती है, चाहे वो रियल एस्टेट का सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, वेदर इट इज़ एयरक्राफ्ट सेक्टर, वेदर इट इज़ all other sector, heavy engineering sector, you will find that iron and steel is very important aspect for every industry. Means you can say it is the base of every industry. Every industry is dependent on iron and steel industry for its survival, for its importance, for its manufacturing. Iron and steel industry is basically situated in India in the Chota Nagpur plateau. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो को इलाका कहता है. इलाको मीन्स द एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड डिवाइडेड मध्य प्रदेश, दैट इज झारखंड. ओके, डिवाइडेड बिहार, सॉरी, दैट इज झारखंड. सो these are the areas of Chota Nagpur plateau where we find bulk of iron and steel. We find bulk of iron and steel, and the main concentration of iron and steel is here. In future, the government is also planning to set up 3-4 new centers of iron and steel. One is at Visakhapatnam. Visakhapatnam is in Andhra Pradesh. The other one is Vijayanagar and Salem in Tamil Nadu. यहाँ पे भी आयरन एंड स्टील के सेंटर्स गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू establish. Now let's see why. Before that, I'll tell you the 6 major plants. 6 बड़े प्लांट जहाँ पे आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन होता है, and that where are these plants or these plants located. So first plant, these plants are located in Bhilai in Madhya Pradesh. You can note it down, Bhilai in Madhya Pradesh, Durgapur in West Bengal, Rourkela in Odisha, Durgapur in West Bengal, Rourkela in Odisha, Bhilai in Madhya Pradesh, Bokaro and Burnpur. These are the places where we have iron and steel government plants located. These government plants of iron and steel are located at these places. Why are these places selected? आप कह दो कि जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं लगा दिया, पंजाब में क्यों नहीं लगा दिया, ये पूछना होगा. तो इसके भी रीजंस आई एम टेलिंग यू. फर्स्ट ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल जो आयरन ओर आता है, आयरन ओर, आयरन ओर इज द रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील. आयरन ओर जहाँ पे मिलता है वो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड. तो आयरन ओर से इसका रॉ मटेरियल होता है जो कि जिससे आयरन बनता है. तो इसीलिए ये सारे इस्टेब्लिशमेंट, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इन्हीं इलाकों में लगाई हैं कि जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पे हम उसको बनाएं. सेकेंड, हैवी मशीनरी एंड हैवी प्रोडक्ट्स आर नीडेड. तो हम बहुत दूर अगर फैक्ट्री लगा देंगे तो हमें पहुंचाने में बड़ी बड़ी मशीनें प्रॉब्लम होंगी. लंपी एंड बम्पी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं,
उनको हमें पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम होगी. देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सेंडिंग दीज मशीन्स. सो इट इज़ बेटर कि वेयर वी आर फाइंडिंग द रॉ मटेरियल वी प्लेस द मशीन्स ओवर देयर ओनली. ठीक, तो इसलिए ये जहाँ पे इनके प्लांट्स वहीं बनाए गए हैं जहाँ पे इनका रॉ मटेरियल यानी कि आयरन और हमें मिलता है. थर्ड, in these areas the means of transport are very well developed. Road transport, rail transport, air transport, the means of transports are very well developed in these areas. So finished goods, जैसे कि उससे finished goods बनते हैं, these finished goods can easily be transported to different parts of India and even worldwide. अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट बना रहेगा, पड़ा रहेगा, वी विल नॉट बी एबल टू सेल. सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम वी कैन ईजिली सेंड द प्रोडक्ट टू डिफरेंट प्लेसेस. फोर्थली, कोल माइंस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होती हैं. सारी कोल माइंस यानी कोयले की खदानें, यहीं पे तो मिलता है आयरन. ठीक है, तो आयरन एंड स्टील के लिए कोल माइंस की ज़रूरत होती है ना. इंडिया की मोस्ट ऑफ द कोल माइंस दे आर लोकेटेड इन दीज स्टेट्स, इन द छोटा नागपुर प्लेटो, इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़. एंड चीप लेबर इज़ अवेलेबल ओवर देयर. वहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है, तो लेबर क्वाइट चीप है क्योंकि इसमें लेबर ओरिएंटेड वर्क है. लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है माइंस में, खदान में काम करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे लेबर ओरिएंटेड वर्क है और लेबर यहाँ पे इजीली अवेलेबल है. लेबर इज क्वाइट इजीली अवेलेबल. सो दीज आर द रीजंस व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज बेसिकली सिचुएटेड एट दीज प्लेसेस इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. इसको हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी कह सकते. नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड मिनी स्टील प्लांट. ये आयरन एंड स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील इज ऑल्सो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन. स्टील भी तो आयरन से ही बनता है. प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज स्टील. सो इंटीग्रेटेड स्टील और नॉर्मल स्टील प्लांट में क्या अंतर है? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होता है वो बड़ा प्लांट होता है. ओके, काफ़ी बड़ा प्लांट होता है. इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का मतलब होता है सारे काम एक प्लेस पे होने. स्टील को कन्वर्ट करना, लोहे को स्टील में कन्वर्ट करना, उसका प्रोडक्ट बनाना, उसकी शिपिंग करना, उसको शेप देना, सब कुछ अंडर वन रूफ. मतलब पॉलिशिंग करना. कोई भी छोटे काम के लिए बाहर नहीं जा रहा प्रोडक्ट. एक जगह, एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें बन के वहीं पे होता है. इंटीग्रेट का मतलब कंबाइन. तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इसीलिए बड़े होते हैं बिकॉज all the processing of steel and steel products are done under one roof. ठीक है, so this is the difference between integrated steel plant and mini steel plant. ठीक है, अब problems faced by steel industry. स्टील इंडस्ट्री को प्रॉब्लम्स क्या है? चाइना से बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम है स्टील इंडस्ट्री को. चाइना स्टील को कम्पीट बहुत कर रहा है अपने चाइनीज़ गुड्स से. कंपटीशन ऑफ डिफरेंट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन है which is steel industry is facing, and this steel industry is facing the tough competition from China. So international competition especially from China is the first problem faced by steel industry in India. Second, high cost and limited supply of coking coal and irregular supply of coal. कोयले से बनता है, कोयला बहुत हाई कॉस्ट है तो स्टील की कॉस्ट बढ़ती है. दूसरा, पावर कट्स बहुत हैं, लाइट की शॉर्टेज इंडिया में बहुत है तो तुम जानते हो ये इरेगुलर सप्लाई और हाई कॉस्ट ऑफ कोल इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेजर प्रॉब्लम है. अगर सस्ता कोयला मिलेगा, इफ देयर विल बी लेस एक्सपेंसिव कोल available, then the steel plants can do much better in India rather than in the different other sectors. ठीक. Third, poor infrastructure.
अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टील प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर्ड नहीं हैं, बहुत अच्छी तरीके से बने नहीं हैं, बहुत अच्छी मशीनें नहीं हैं। ओके, मीन्स वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्शन को टक्कर नहीं देते, दे डोंट कम्पीट विद द प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड लेवल। फोर्थ, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर हमारी स्किल्ड नहीं है, कोई काम करने में एक्सपर्ट नहीं है, तो प्रोडक्शन बहुत लो होता है। जहाँ पे हमें कई टन से स्टील एक दिन में प्रोड्यूस हो सकता था, वही बहुत कम प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड लेस प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब लेस प्रोडक्टिविटी क्या, ज़्यादा पढ़े लिखे लेबर रहेंगे, स्किल्ड लेबर रहेंगे तो द प्रोडक्टिविटी विल बी गुड। If the labor are less skilled, the productivity is less. So this is another problem that is faced by the steel industry in India. So I think this is the iron and steel industry for you. I'll be sharing the notes of this today. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज मेजर स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ मेजर स्टील प्लांट्स हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ से स्टील प्रोड्यूस होती है, एंड इन विच सेक्टर द स्टील इज यूज्ड, कहाँ कहाँ, जैसे रेलवे इंजन, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, ये सब जो है मुझे तुम्हें बताना है। So I think this will take 1 or 2 more lectures, obviously, and then the importance of manufacturing industries for a country, क्यों industries हैं, and this will sum up the whole chapter. So one more chapter will be completed, and I hope you all are making the notes of the chapters. Notes बना रहे, because at any time I am going to call you roll number 1 to 10 in school with your copies. You can come for 10 minutes and submit your copies, get your copies checked. So I am going to do this for you, and till then you keep making the notes, and if there is any problem while making the notes or any problem in understanding anything, you can ask me. Fine? It's bye for now.